Hello friends, welcome back to my show. Spend less, eat best. Chef Nitin Jain this side. Very much thanks for your comments and your queries. I am really happy that you are very much curious and people got to know about my next recipe, herb green tea shorba, and people are interested to know about it. Very much thanks for your love and showing your interest in it. So I'll not waste any time and start to make the recipe now. So while I'm just hitting the pan, and then later on we'll put the oil. In between that I am just telling that green tea is ready already to cook. It's already, I just put the hot water and then one sachet of the green tea, and then whole spice which I'll start to temper. That is your fennel seeds and your coriander seeds and crushed black pepper. That's you have to use for tempering. Other side, that's main ingredients of the dish is your kaffir lime, lemon leaves, nimbu ki patti, that you have to use. I got it from nearby my home, but you have to use it because it's the soul of that recipe. These things only make the changes. So the other ingredients are there: onion, chopped tomato, de-seed, de-skin petals, because I am not using the skin part. That is always come into the mouth, so that's de-seed and de-skin. I already updated how to cut it before also. And then other part is green beans. I have the crunchy fresh green beans, I am using it. Your cilantro, dhania and green chili, hari mirchi, that I am using, and salt and carrot, chopped carrot. And then second main ingredients is your lemon zest and lemon juice. So pan is already heated up. Honey I am using. This is the honey sachet I have. Now first we have to put the oil. Heat the oil, and you have to feel that anyhow you know that once that oil will be properly heated up, then only you have to temper that your whole spice. It's take bit time, but don't put your whole spice before it on a less heat oil. Tempering always do in a slow flame, because that it will be in control. Now I am putting to first that whole spice, and after that little bit of just stir it, mix it well, and then I put that your lemon leaves. So this is going to be tempered now. That's secondly we put the lemon leaves. Lemon leaf और आपका लास्ट डाल रहा हूँ मैं गार्लिक को ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा टेम्पर करना है स्लाइटली। रेसिपी मैं आपको पूरी शेयर कर दूंगा जब आप मेरे वीडियो देखेंगे। इसके नीचे का जो डिस्क्रिप्शन डिटेल है उसके अंदर पूरी रेसिपी लिखी हुई है, और अगर कुछ आपको डाउट भी लगता है तो आप उसके अंदर मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं उस हिसाब से आपको अपनी कुकिंग की डिशेज बना सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ। क्या पता मैं जो चीज़ बना रहा हूँ आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, कुछ नई चीज़ आपको जानना चाहते हैं तो वो जानेंगे। हर्ब ग्रीन टी शोरबा मेरे को बहुत पहले मेरे दिमाग में आया था जब मेरे को किसी ने एक इनोवेटिव डिश बनाने को बोला था, और वो आज मैं रेसिपी आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। इसका फोटोशूट हुआ था बट वीडियो कभी बनाया नहीं। अब इस सिचुएशन में ये चीज़ें हो रही हैं तो मैं बना करके दिखा रहा हूँ। मोस्टली जो मेरे को रेस्पॉन्स आया मेरे यूएस से, मेरे को बहुत रेस्पॉन्स आया, मेरे फ्रेंड्स ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि
मेरे वीडियोस के लिए लोग वेट कर रहे हैं और उन्हें देखना चाहते हैं कि हाउ बीइंग शोरबा क्या है। बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं वो सब जगह कॉमन होता है। कोई चीज जो यूज की जाती है वो हर दूसरी रेसिपी में लोग यूज करते हैं। कहने के तौर पे आपको बताया जाए, अगर आप किसी स्टेट में या किसी सिटी में जाते हैं तो अगर आप आलू की सब्जी भी बना रहे हैं तो हर दूसरे घर में आलू की सब्जी बनाने का तरीका अलग अलग होता है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सब्जी बन रही है वो एक जगह पे सही है और दूसरी जगह पे गलत है। हर जगह हर लोग का बनाने का तरीका अलग अलग होता है और हर जगह वो अपनी तरह से ठीक होते हैं। टमाटर थोड़े टेम्पर हो गए, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बीन मैं बाद में इसलिए डाल दूँ, बीन थोड़ी क्रंची रहे तो अच्छी है, थोड़ी सी डाल दी जाएगी। और कैरेट आप चाहें तो उबाल सकते हैं, मेरे को क्रंची चाहिए तो मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ। ऐसा हो गया। घर में बोल रहे हैं कि जो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं आएंगी और करनी पड़ेंगी तो क्या उसको तुम अपनी रेसिपी में कन्वर्ट कर दोगे? उनका जब कोई चीज़ करनी है, कहते हैं जब किसी चीज़ का आनंद लेना है तो उसको अपने तरीके से लिया जाए। आपको पता लग जाएगा जब वो टेम्पर होता है, हल्का सा एक गोल्डन ब्राउन होता है, एक ब्राउन होता है, एक टेम्परिंग होती है, वो सब्जी अपने ट्रांसपेरेंट होने चालू जाती है और आपको पता लग जाएगा कि वो रेडी हो गई है। आप चेयरमैन से सब्जी को धोकर भी यूज करिए, गर्म हम कर ही रहे, सारी चीज़ को धोकर के वॉश करके यूज करिएगा। और ये डाल दिया, मैंने डाल दिया इसके अंदर एक ग्रीन चिली होल डाल दी, आप चाहे तो पार्टी भी डाल सकते हैं। जो लेमन लीव्स की खुशबू है, जो काफिर लाइम है, उसका फ्लेवर एक अलग ही लेवल पे आता है, आपको फील होगा। आप एक तो ग्रीन टी पी रहे हैं और उसके अंदर आपको थोड़ा फ्रेशमेंट चाहिए और फ्रेशनेस चाहिए, तो उसके लिए लेमन लीव बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा पार्ट जो उसका कवर हो जाएगा वो होगा किससे? आपका लेमन जेस्ट से, जो कि मैं एंड में डालूंगा। लेमन जेस्ट, लेमन जूस। लेमन जेस्ट जनरली कुछ नहीं करना, आपको बस हल्का सा अपने ग्रेटर से उसको घिस लेना है ऊपर की येलो स्किन को। ग्रीन पार्ट को लेंगे तो ग्रीन टी तो कड़वी है, ऊपर से फिर आपका सूप जो कड़वा हो जाएगा। आप वो बहुत हल्का सा घिसे जिससे कि सिर्फ उसका ग्रीन ऊपर का टॉप पार्ट आए, उसका व्हाइट पार्ट ना आए लेमन खाने तो बहुत बेटर हो सकता है। और हनी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। कई लोगों को हल्का सा स्मोकी फ्लेवर चाहिए होता है और स्वीटनेस चाहिए होती है। शुगर तो यूज करनी ही नहीं, शुगर मत यूज करिए, ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं तो आप मेपल सिरप कई लोग यूज करते हैं। मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो कि जनरली कुकिंग में हनी की जगह मेपल सिरप यूज करते हैं और अच्छा है। पम्पकिन सूप एक मैंने बनाया था, येलो पम्पकिन सूप विद मेपल बेस, तो वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया था। मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगा बाद में धीरे धीरे। पहले आप मेरे को कमेंट्स से करिए आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, और अगली रेसिपी में मैं आपको बताऊँगा कि अगला मेरा वीडियो जिस चीज़ पे आएगा वो चीज़ कौन सी रेसिपी मैंने सोची है और मैं आपको बना के दिखाऊँगा। और चीज कर देते हैं इसमें कि अब हमें लगना नहीं, लेमन लीव पूरी तरीके से टेम्पर हो चुके हैं और बाकी सारी सब्जियाँ हो चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगा मेरी ग्रीन टी। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप कोई एक तरीके की 4-5 रेसिपियाँ देखते हैं तो उस रेसिपी को बनाना और उसको देखने के जो नज़रिया होता है हर लोगों का अलग अलग होता है। बताया जाता है कि कोई भी चीज़ सही है गलत नहीं होती। आप एक तरफ से देखें तो आपको 6 दिखेगा, दूसरी तरफ से 9 नज़र आएगा, तो इसका मतलब नहीं कि वो दोनों तरफ के जो लोग हैं वो सही है गलत है, वो सिर्फ उनके देखने का नज़रिया है। इंग्रेडिएंट्स बहुत मैटर करता है। लेमन लीव्स और सिर्फ लेमन जेस्ट जो मैंने इसमें डाला है वही आपके इसके फ्लेवर को चेंज करेगा। तो ये
मेरे एक शेफ हुआ करते थे ऑल अबाउट लाइक 1989 ग्वेन बनटी इन दी ओब्रॉयज न्यू दिल्ली। उन्होंने एक डेजर्ट बनाया था कैरेट केक पुडिंग। कैरेट केक पुडिंग उन्होंने बनाई और हमारा ट्रायल हो रहा था। और ट्रायल में क्या हुआ कि ट्रायल में क्या हुआ कि जब वो टेस्टिंग के लिए हमारे जनरल मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर ये लोग आए, उन्होंने देखा, टेस्ट करने के बाद उन्होंने सीधे क्या बोला, उन्होंने बोला यार ये तो गाजर का हलवा लग रहा है। एज ए फ्रेंच शेफ ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली, सो ही आस्क्ड दैट व्हाट इज द गाजर का हलवा। वी टोल्ड दैट दिस इज द गाजर का हलवा बिकॉज दैट कैरेट पुडिंग दे हैव ए नो फ्लेवर ऑफ योर कार्डेमम एंड देन अवर गाजर का हलवा आल्सो वी आर यूजिंग द कार्डेमम मेन फ्लेवर इन इट। तो ही फील वेरी बैड, उसको बुरा लगा। उसने बोला that you never compare the things because one side that you are making something, it's a totally different. There is some tweak are in it that makes that little bit different. But हर चीज बराबर होती है। गाड़ी तो गाड़ी है, 4 पहियों की भी होती है, वो मर्सिडीज भी होती है, वो मारुति भी होती है। So that's doesn't mean. So that's the reason I'm saying that ingredients का बहुत बड़ा महत्व होता है उस ingredients में and then way of cooking which we were doing। ये हो गया थोड़ा, देखिए अब इसमें मैं डालूंगा, इसके अंदर मैं डाला, आप देखिए ये है, अब डाला मैंने इसमें लेमन जूस, डालना होता है लेकिन पहले थोड़ा हनी डाल दो। ये डाला है हनी, ठीक है, और लेमन जूस बिल्कुल एंड में। ये हो गया आपका हनी, थोड़ा सा मिलाएंगे इसको, आपको थिकनेस पता लग रही है। अब जब ये फाइनली चीज, जब ये आपका बन जाएगा, अभी आपके बबल आ रहे हैं, बबल में आपको फील होगा, पास से देखिए कि बबल में आपको थोड़ा सा हल्की सी थिकनेस, थोड़ी सी बॉडी फील होगी। वंस यू फील द बॉडी यू हैव टू स्टॉप योर शोरबा। नाउ वंस यू स्टॉप इट, ये हो गया। अब आपको क्या डालना है, अब आपको मेन इंग्रेडिएंट्स, एक लेमन लीव्स डाली थी एंड में, अब आपको डालना है ये लेमन जेस्ट। अब इसको गर्म नहीं करना है आपको किसी भी हाल में, गर्म मत करिएगा इसको। ये डाल दिया लेमन जेस्ट, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, हल्का सा, बाकी बाद में डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये डाल दिया। अब आप बोलेंगे इसमें सब कुछ डाल दिया, नमक नहीं डाला। इसके अंदर नमक आपको डालना है सबसे एंड में। ये दिया आपने नमक और ये मिला दिया। नमक शुरू में नहीं डालना है, जनरली सब्जी बनाते हैं, टेम्पर करते हैं, डालते हैं। नमक इसमें बाद में इसलिए डाला है क्योंकि आपको आपकी वेजिटेबल में थोड़ी बॉडी ऑफ क्रंचीनेस चाहिए। अगर आप नमक पहले डाल देंगे तो आपकी वेजिटेबल्स जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएंगी, वो सारा पानी छोड़ देंगी और वो सॉगी सी हो जाएंगी। तो आपको वो मजा नहीं आएगा। कोई शॉर्बट जो आपका ब्रॉथ है, दैट ब्रॉथ इज लिक्विड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो आपको क्रंचीनेस दे रही है। तो आपको ये देखना है कि वो उसके अंदर जो आप वेजिटेबल्स है उसकी क्रंचीनेस को फील कर सके, इसलिए आपका सॉल्ट एंड में डालना है। ये हो गया आपका ये, तो मैं सूप को डाल देता हूँ। ओके, इंग्रेडिएंट्स अभी डलना बाकी है। प्लेट ले रहा हूँ, अंडरलाइनर ले लूँ, लेनी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी प्रिपरेशन अच्छी लगी होगी। यू ट्राई, यू मस्ट ट्राई एट होम एंड कमेंट्स मी। और अगर वीडियो अच्छी लगे, डिश अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, बेल इंडिकेशन जरूर दबाइएगा जिससे कि मेरी नेक्स्ट रेसिपी आपको पता लग सके। और नेक्स्ट रेसिपी मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ आपको, उसको आपको बता देंगे। मैं बनाने जा रहा हूँ पापड़ से, दैट इज रबर कैनेलोनी, इट्स पापड़म कैनेलोनी, which
which is stuffed with your soya granules and cottage cheese with some kind of quick with the ingredients, and then we'll serve it to you on a white sauce and a little bit of tomato sauce. So this will be come on the next week, so please be ready for that. I'll send my posters and send my details to you for my next week video.